Before we move forward with the program, this morning we'll pray. Let's pray. We can join our hands and close our eyes. Let's pray. Thank you, Heavenly Father, for this wonderful morning you have given us, Lord. We pray that you bless each and every one of us present out here. You pray for your special presence in the 6 hours of training, Lord. I pray especially for our resource people. Lord, bless both of them, cover them under your blood, and bless them, Lord, so that they can be guided through your spirit to speak the right thing, and we can really learn, and it can be a great blessing for our teaching career. I pray for all the people, those who are here, all the teachers, and we pray for the principal STNCs, that pray that you bless them, Lord. And we dedicate this day in Jesus' name. Amen. So one more time, good morning everyone. जोर से बोलेंगे गुड मॉर्निंग. आप लोग का सुनाई नहीं दे रहा है? और जोर से थोड़ा बोल दीजिए गुड मॉर्निंग. अभी थोड़ा अच्छा लगा. ठंडा में जो है हम लोग गर्म करना, शरीर को ज़्यादा जोर से बोलेंगे, चिल्लाएंगे और थोड़ा जंप मारेंगे, है ना, तो सब होगा. So before that, I request our Devapriya sir, our principal from Sidhu Kanu, let's clap and welcome and give us some blessing. Please come, sir. Thank you, sir. Good morning, everybody present over here. As we know that this is mandatory for us to attend these kind of training programs as Sahodaya is conducting. So probably this is the first Sahodaya training for you, I think, I suppose. Is this so? This year, I mean. Okay. So best of luck for this training. Hopefully you will be enjoying during this session of training, and at the same time you will be able to learn many things, and which you will be able to implement in your classes while taking classes. And hopefully during these years of the CBSE COE training and these Sahodaya trainings, you have improved yourselves a lot. And this training session, particularly this training session, will also will be icing on the cake for you, I think. Let me tell about two of our resource persons today present here. One is Sir Brijesh Shukla and another is Sir Amit Jha. Both of them are very experienced resource persons, and at the same time they take their sessions in a very humorous way so that you can enjoy, and at the same time you can learn. So thank you very much once again for calling me here in this school, Millennium School. Thank you very much, sir, for that. And best of luck to all of you for this training session, and best of luck to our resource persons as well. And here I would like to, thank you for coming, Abhay Anand sir and Sumita Singh madam. All of you are, we are grateful that you are present here. So thank you very much. Thank you, sir. Abhay sir also is in our midst, so I request him also to share a few words, and let's clap and welcome him. थैंक यू, धन्यवाद सर. आज हम लोग यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा जो इन हाउस ट्रेनिंग आयोजित करना है, पहला ट्रेनिंग हम लोग सभी यहाँ पे एकत्र हुए हैं, और बड़ी गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ कि आज के जो रिसोर्स पर्सन हैं, सर ब्रिजेश शुक्ला सर, सर अमित झा सर, काफ़ी एनर्जेटिक और बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन हैं.
हम आप लोगों से आशा करेंगे कि इनकी बातों को गौरपूर्वक आप लोग जो है सुनेंगे और जो अपने विद्यालय में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे बच्चों का और हम लोगों का भी सर्वांगीण विकास होगा। बस धन्यवाद सर। Thank you very much, Abhay sir. So this now is the time that we will start a program, and we'll start a program with uh, the prayer dance. There is one prayer dance, and before prayer dance, I request both our resource person, Mr. Brijesh Kumar Sukla sir. He's a CBSE resource person, HOD Social Science, Faculty of Economics, Sidhu Kanu Group of School. So let's clap and welcome Mr. Brijesh Kumar Sukla. जोरदार ताली से उनका हम लोग स्वागत करेंगे। स्टेज में आ जाएंगे, ताली बजाएंगे। और साथ ही हमारे वेल नोन ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन मिस्टर अमित झा, ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। वो भी HOD है, इंग्लिश CBSE रिसोर्स पर्सन, इंटरनेशनल एजुकेटर and very famous. He got one award, you believe, we have seen in the newspapers, Desh Ratna awardee, Central Government of India, Sidhu Kanu Group of School. ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे। और हमको लगता है झारखंड से इन्हीं को मिला है ये अवार्ड। तो फिर जोरदार दोनों का वेलकम करेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारी जो प्रिंसिपल मिसेस अनीता आएंगे और सॉल जो है वहाँ पर इन दोनों को डालेंगे। जल्दी से आ जाएंगे। लेट्स क्लैप फॉर आवर प्रिंसिपल मिसेस अनीता। ताली थोड़ा बजाएंगे। Now, actually we are having a very small group of 60. Previously we used to have a huge group of 200. Huh? So the clap was little loud because of so many people. ताली बजाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत धन्यवाद सर, आप बैठ सकते हैं। नाउ वी विल begin with our program, and first program we start with a prayer dance by girls of the Millennium School, and then we'll start the program. Thank you very much.
Check. Thank you very much. And we believe that you will enjoy today's topics. Topics are very interesting. And before we go to the topics and the training part, I like to welcome all the 4 schools, especially first we welcome Western English School. So I believe that all of you are here. Please stand in your place so that we can clap for you. Western English School. ताली बजाएंगे इनके लिए. And if your principals and STNCs can come in front and sit, all the principal and STNCs. Then we have, please sit down, thank you. Now then we have Ashram Residential School. Please stand. We clap and welcome Ashram Residential School. ताली बजाएंगे, स्वागत करेंगे सबका. और प्रिंसिपल STNC सब सामने आके बैठ सकते हैं. और we have in our midst Eklavya काठी जोड़िया, ताली बजाएंगे उनके लिए, खड़े हो जाएंगे. And principal STNC, yeah, clap for them. Nice to see you, ma'am. Please be seated. And last but not the least, we host school, the Millennium School. Please stand, teachers, and clap for yourself. Principal can sit in front. Thank you very much. So we don't waste time. So we go to the program, and we have the topics are very interesting. Point number 1 topic is notwithstanding online material, the role of today's teacher. The number 2, introduction of topic and its nuisance. Number 3, circle time using group dynamics for learning. Number 4, process of feedback immediately after lesson. So we are very excited to look forward for these trainings. And once more, the most important people of the day, Mr. Brijesh Kumar Shukla and Mr. Amit Jha. Let's give them a good round of applause. And I believe the first session, Mr. Amit will be taking. So it's yours. Time, please come and start the program. Let's clap and welcome Sir Amit Jha. Yes, sir. Thank you so much. First of all, I bow my head in front of all delegates, teachers, my principal of Western English School, Eklavya School, and all the other schools, whoever have come here. My dear friend Shukla sir, Samson sir, and all delegates over here. I once again welcome you all in this seminar. I hope you will enjoy the session and learn also. So let us begin. As sir has already introduced the topics, the first topic is notwithstanding online material, the role of today's teachers. Thanks. So, first of all, feel proud that we all are teachers. I am in the habit of roaming, so I will be roaming and taking session. I cannot stay in a single place. So, we all are teachers. So, I want and I request you all to participate for the questions which are being asked so that the training will be more effective and full of learning. So, who are teachers? How you will define teachers? If anybody will ask. How can you define? Can you define your own definition of teacher? Anybody? Please raise your hands. Yeah, ma'am is willing to say. Can I have another mic, please? Yeah, ma'am. एक्चुअली लास्ट सेशन या कहें कि जब हमारा न्यू एनईपी नहीं आया था, उसके पहले टीचर का डेफिनेशन था टीचर सेंटर्ड, मीन्स टीचर जो पढ़ा रहे हैं बच्चे को उसको अडॉप्ट करना है. बट नाउ डेज हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज अभी हमारा है चाइल्ड सेंटर्ड. सो आज के समय में एक अगर साफ शब्द में कहें तो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर करे दैट इज टीचर. और स्कूल में हर टाइप का रिस्पॉन्सिबल
हमको होना पड़ता है। ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं कि ओनली एकेडमिक हमको काम करना है, क्योंकि आज के डेट में एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक हो, एक्स्ट्रा करिकुलर हो, ऑल फील्ड में हमें अपना टैलेंट दिखाना है, हमें एडोरेबल बनना है, हमें हेल्पफुल रहना है, इनकरेज करना है। दैट इज टीचर। Of course, very good. Clap for her. Very good answer, ma'am. Actually, definitely you are right. A teacher fulfills all the desires of students and he or she builds a complete man. Okay, not only in the section of academics, apart from academics, we have to enhance the students for the sake of co-curricular activities also. So there will be full development of the students. Nowadays, there are many challenges for the teachers. Okay, apart from offline, you can say education, some of the online curriculums are also introduced and they are in very high level. But despite of that, the role of teacher will never going to be extinct or vanished. Whatever the technology will be enhanced, no matters, but the role of teacher will always remain there. Do you agree? So in a nutshell, we can define teaching is more than imparting knowledge. It is inspiring change. That's what ma'am also told. This was one of the most prominent characteristic of a teacher. So you can see teaching is more than imparting knowledge. It is inspiring change, and learning is more than absorbing facts. It is acquiring understanding. Until and unless you will understand, you cannot implement. And you cannot let others to implement. So first of all, the role of teacher is to what? Prepare the lessons, to get knowledge, to get familiar with the topics, whatever he or she is going to deliver in the class. And afterwards, the children will definitely acquire and there will be complete development among the children. So this is the definition. Okay, any doubt? Can I have next slide, please? So teacher stands for talented, educated, adorable, charming, helpful, encouraging, responsible. These are called acronyms. We saw, no? NCC, National Cadet Corps, WHO, World Health Organization. So these are called acronyms, abbreviation, no? So can you make acronyms by your own? I hope that you all are having sheets with you or notepad. Do you have your diary or notepad? So let us see who makes the fastest one, the acronym of teacher. Just like this, this is an example which has been given. You can have a glance on that. Teacher, T-E-A-C-H-E-R. So T for talented, E for educated, A for adorable, C for charming, H for helpful, and E for encouraging, and R for responsible. This is one acronym made by one of the intellectual. So can you make? So see, although there is not any acronym for teacher, this is the fact. There is not any specific acronym like NCC, WHO, and ABC like that. But we can also make by our own, because plenty of adjectives are there. Plenty of nouns are there. Through that we can make acronyms. So the term generally describes a person who educates students and helps them to solve problems relating to academics and life. While life is saying, teacher not only teaches, he or she also looks the personal aspects of the students. Suppose in a class, if any student is not paying attention, and we simply scold them, that why you are not paying attention, why you are not doing your homework, why you are not bringing your new copy which has been told already. So we have to look into the matter. Why it is so? Why he or she is not bringing? We have to find out the way. Maybe he or she is affected in the family issues or any personal issues. So teacher's role is to counsel as well, apart from teaching. उसको काउंसल करने की भी जरूरत है, उसको सलाह देना है, उसको सही पाथ में ले जाना है. Okay, so let us do some activity also.
written activity. Can I have next slide? So you try to make acronym by you. Okay. TEACHER. Let's make our own. You all are well fond of this, I know. So your time starts now. Let me see who makes the faster one. In your sheet or diary, notepad, wherever you want, you can make T for, apart from that which has been shown. Okay, please don't write that. Your own. Let's make our own, because we all are knowing this. Two minutes enough? Okay. One thing is sure, all the teachers' classes are very calm, as my class is now. This is good symbol. If there will be peace of mind, then everything will be found, no? Anybody? Okay, one hand I can see. Yeah, ma'am, please. Yes. Very good. Come on, ma'am. Yeah. Later. Yeah, of course. Yeah. Ma'am, please take your mic. Yeah, thank you. Thank you. Hmm. T for thoughtful, E for energetic, Hmm. A for advisor, Hmm. C for cheerful, Hmm. H healthy, Hmm. E empathetic. Empathic should be empathic, that term we have gone through last year so much. Of course, Okay, sympathy yeah. and empathy. Yeah, and We have R for- differentiated a lot. Yeah. Yeah. R for reliable. R for Reliable. reliable. They should share the whatever they comes in their mind now, either good or bad. They should be consider us reliable enough. Definitely And the- this secret should share the secret also, so that we may guide them. We may teach them for life also. Of Yeah. course, ma'am, you are right. Yeah. Reliable is very suitable here. Why? Because parents, guardians are sending their children to school because they what? Rely on us. Yeah. That's true. why we are reliable. Please big clap for her. Thank you, thank you. Very good acronym. Can I have the second one? 3 will take, okay? I request Julie to give one pen, which is the great weapon, I believe. When I got the Desh Ratna award, during my speech, I used to tell, and I tell every time, pen has the power to change the world. So that's why I'm gifting you pen to change the world. Thank you, ma'am. Yeah, ma'am. Please, you. In continue. my view, T for time bonding, because अगर हमारे पास time का punctuality नहीं है तो we are not a teacher. Of course, ma'am. Second is energetic, of course, जो मैम Yeah. ने कहा energetic हमें होना Very चाहिए. Third is accuracy. Accuracy, correct. फोर्थ इज क्लियरिटी, हमारे पास क्लियरिटी होनी चाहिए कि बिल्कुल। हम क्या बोल रहे हैं. नेक्स्ट हेल्प, होपफुल, हमें कुछ होप भी दिखाना चाहिए स्टूडेंट में, खुद भी होप रखना चाहिए. It means you want to say positivity यस यस as a team, no? Very good. बिकॉज अगर हम Optimistic. यस अगर हम में नेगेटिविटी रहेगी तो हमारे स्टूडेंट कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल. नेक्स्ट इज इमोशनल, हमारे Yeah. पास इमोशन भी होने चाहिए बिकॉज Yeah. गुड एंड बैड ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इन आवर स्कूल. बिल्कुल एंड सही. लास्ट इज रिक्रिएटेड और रियलिटी, इस पे हमें Real- ज़्यादा फोकस करना चाहिए. अगर कुछ क्रिएट है ठीक है, लेकिन फिर से उसको अगर हम बना दे तो दैट मीन्स यू आर गुड टीचर. Clap for her also. Another fabulous acronym. The last one, who will say? Ek aur? Yeah, ma'am. Please continue. Please give her pen. Yeah.
Oh, hello. The teacher word for T, I say talented. Talented. Okay. Yes, because the teacher is talented, she has to handle all kind of student. So it is a talent. The second one is encouraging. She should be encouraging because there are all types of students in the class. They may be meritorious, they may not be so bright, but we have to encourage all the students to come forward in life. And the third one, A stands for appealing. A teacher has to be appealing to all kind of students. Okay? Course. Whether they are dumb, whether they are bright. Miss, you want to say impartial activity by teacher in the class. But the personality of the teacher should be appealing Okay, okay. to the all kind of students. Okay. Now the fourth one is C. Here I say the teacher has to be courageous. Because to handle the students is not a very easy job. So for that it needs courage. Okay. Yeah, ma'am. And for H it is humorous. 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 Humorish. So while teaching, she should also has some aspect of humor in her, so that she can make the class more appealing to the student. Humor means jokes. She should also means crack some jokes so that the student. While teaching, you want to say. Yeah. Very good. Then E is entertaining. Again, Entertaining. it's similar to. These are the synonyms, perhaps. Yeah. Okay, okay. No issues, ma'am. I appreciate your effort. And the R is for repetitive. Means a student who is not bright, he might need the class again and again. So the teacher has to be repetitive in the lessons. Correct. Clap for her also. Yes. So, see, we are getting answers by our own. So, we the people make definitions, no? We are teachers. We all are teachers and we are very talented teachers. We work very hard, that's why we are in our respective schools. And the students are learning and there is faith on us by the parents, guardians. That's what we want to have it. Okay? So, can I have next slide, please? See, should I speak Hindi also? Okay. English, no? It will be good. नहीं तो बोलेगा बहुत इंग्लिश दे रहा है ऐसा नहीं है. So, पावर बैंक देखे हो पावर बैंक? उसको अगर आप फुल चार्ज नहीं करोगे तो वो आप उससे कोई चीज चार्ज कर सकते हो? What I mean to say is clear. पावर बैंक होता है ना, बैटरी उसको अगर आप फुल चार्ज नहीं करोगे तो क्या आप उससे कोई भी मोबाइल वगैरह या अदर एसेसरीज को चार्ज कर सकते हो? नॉट एट ऑल. तो जस्ट सिमिलर टू दैट, a lamp can only light another lamp when it continues to burn its own flame. आप समझे इसको? बात समझे? तो टीचर के साथ भी वैसा ही है. टीचर जब तक खुद को प्रिपेयर नहीं कर लेगा अपने लेसन्स को, ठीक है, अपने क्लास का टाइम मैनेजमेंट को, इन्वायरमेंट को, क्लास के हैप्पीनेस को, तब तक वो सक्सेस नहीं हो सकता है पढ़ाने में. अंडरस्टूड? बिकॉज द क्लास विल बिकम मोनोटोनस, एज मैम ऑल्सो टेल्ड. ओके, जस्ट सी टोल्ड, नो, इंटरटेनिंग होना चाहिए, ह्यूमरस होना चाहिए. हाँ, लेकिन दोनों तरह से देखना है आपको. आप उस पे मत हंसिए, उसको हंसाइए. किसी पे हंसना और किसी को हंसाना में अंतर है. यू वुड हैव नोटिस दिस, नो? किसी पे हंसना यानी आप उसका उपहास कर रहे हो. वेरी गुड पॉइंट इट वाज. अगर कोई बच्चा गलती से गलती कर देता है या जानबूझ कर भी, तो आप उसको सिखाओ, उसको मोटिवेट करो, उसका उपहास मत कर दो क्लास में. उसको और ज्यादा आपके प्रति नेगेटिविटी आ जाएगा और वो चार लोगों के बीच में आप ही के बारे में निंदा शुरू हो जाएगा. वाई? क्योंकि नेगेटिव पॉइंट आपने दे दिया उसे. और अगर आप खुद उसको कोई ह्यूमरस एक्टिविटी कर रहे हो या कोई जोक्स क्रैक कर रहे हो लेकिन उसको पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो, तो वो बोलेगा नहीं, पूरा जॉली टीचर है, हिटलर का रिलेटिव नहीं है. अंडरस्टूड? सो टीचर शुड बी ह्यूमरस. बस यही पॉइंट सब हम लोग को ध्यान देना है, जो कभी कभी गलती से हम लोग गलती कर देते हैं. घर में कुछ इश्यूज हुआ तो थर्ड पार्टी रिचार्ज इधर बच्चों के साथ हो रहा है. अंडरस्टूड? इट शुड नेवर बी.
आप घर का गुस्सा घर में ही सीमित रखो, और स्कूल में जैसे ही इंटर करो एक नए सोच के साथ, एक नए एनर्जी के साथ और एक नए तरीके के साथ आप इंट्रेंस करो क्लास में, देखना क्लास बहुत अच्छा रहता है. एज वी आर ऑल आर डूइंग, आई नो. अंडरस्टूड? सो द रोल ऑफ टीचर्स इन अ नटसेल यू कैन सी. कुछ कुछ रोल्स जो कॉमन होते हैं टीचर्स का, वो आप इस स्लाइड में देख सकते हो. सबसे पहले हम अगर ट्यूटर से स्टार्ट करें तो सबसे पहले एक टीचर क्या होता है? ट्यूटर होता है. अच्छा टीचिंग कैपेसिटी, ही और सी इज हैविंग गुड टीचिंग कैपेसिटी. बोलने की शैली, समझाने का तरीका, अंडरस्टूड, एग्जाम्पल देने का तरीका, तो बच्चा लोग जरूर सीखेगा. ओके. उसके बाद लेक्चरर. लेक्चरर का मतलब ही नहीं कि क्लास में चैप्टर के ऊपर पूरा लेक्चर देते गए, बच्चा कुछ सुना ही नहीं, क्लास मोनोटोनस. लेक्चरर ऐसा जिसका आप इलुस्ट्रेशंस दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये जब कर सकता है तो आप क्यों नहीं. आप फेल्यूर्स का एग्जाम्पल दे दीजिए, जो सक्सेसफुल हुआ बाद में, जिसको शुरू में बोल रहे थे तुम बेकार है, कभी नहीं कुछ कर सकते हो, लेकिन वह वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया. अंडरस्टूड? सो वी कैन गिव द एग्जाम्पल्स टू द वीक स्टूडेंट्स ऑल्सो. और वैसा बात है कि वीक तो बोलना ही नहीं चाहिए हम लोग को. बच्चे को अगर कुछ कुछ वर्ड्स में चेंजेस ला देंगे ना, तो बच्चा नेगेटिव आपको लेगा ही नहीं. आपको बोलना है दे आर birds, they are flowers, definitely they will bloom. That's why some of the flowers they are late bloomers. खिलेगा जरूर, थोड़ा लेट हो जाए लेकिन खिलेगा जरूर. So we can tell them late bloomers instead of weak students, poor students, rubbish students. No, these adjectives are not good for them psychologically. ठीक है. बच्चे के अगर दिमाग में बैठ जाता है नेगेटिव ना, तो वो उसको कंटिन्यू करता जाता है, उसको पनपने ही नहीं देना है हम लोग. बिंग यस. एंड कंट्रोलर. क्लास में कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर किस्म के बच्चियां होती हैं क्लास में. सो इट्स अ ग्रेट चैलेंज फॉर द टीचर टू कंट्रोल ओवर द क्लास. कोई चिल्लाएगा, कोई इंटेंशनली चिल्लाता है, आप उसको मौका मत दो. ज्यादा डिस्टर्बेंस है तो आप उसको पर्सनल काउंसलिंग करो, सबके सामने बेइज्जती नहीं करना है. आप उसका नेचर बदल सकते हैं. इफ यू काउंसिल, आप उसका नेचर बखूबी बदल सकते हैं. यू हैव द कैपेसिटी. और इस प्रकार हम लोग क्लास में कंट्रोल कर सकते हैं. अगर क्लास इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्लास में कुछ ज्ञान रूपी बातें होंगी विद वेरियस एग्जाम्पल्स, बच्चा को आप कंट्रोल बिल्कुल कर लेंगे. Understood? I know some of the students intentionally, their intention is to come to school to disturb others. ये भी होता है, खास करके सीनियर सेक्शंस में. ठीक है. तो हम लोग के ऊपर में है कि कंट्रोलर एक अच्छा कैसे बने. उसके लिए आपको बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़े. प्रॉम्प्टर, ऑफ कोर्स वी हैव टू इनकरेज, वी हैव टू मोटिवेट, क्योंकि हम लोग भी तो मोटिवेटेड हुए हैं, इनकरेज हैं, तो आज दूसरों को कर रहे हैं. जस्ट लाइक पावर बैंक. आप देखना एक लैंप भी अगर रोशनी देता है तो वो जलता है दिए में, बत्ती में जलता है ना, तब रोशनी देता है, अदरवाइज वो रोशनी दे पाएगा नहीं. बात समझे? नाउ प्रॉम्प्टर का मतलब आप ये समझो कि यू हैव टू टेक द एक्शन प्रॉम्प्टली, रैपिडली, क्विकली. नहीं बोलते बहुत प्रॉम्प्ट वर्क करता है वो. जैसे ही वो क्वेश्चन पूछा आप आंसर देने के लिए रेडी हो. व्हाई? बिकॉज यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड. Understood? And afterwards, resource. Take examples. Take various sources for your deliberation in the class. Examples जो मैंने आपको कहा, you can take various examples of the failures who got successful in their future life. आपके पास बहुत सारा एग्जाम्पल है. आइंस्टीन को ले लो, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसको हेडमास्टर ने कहा था कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये फ्रीकिस है. फ्रीकिस मीन्स होता है सन की, फ्रीक. ठीक है, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा. लेकिन आप ही बताइए, आइंस्टीन ने क्या किया, पूरा वर्ल्ड जानता है. लेकिन उसमें से एक चेंजेस जो लाया, द पर्सन हु गॉट द चेंज इनटू आइंस्टीन वाज हिज मदर, who is the first teacher.
एम आई राइट? तो उसने, हेडमास्टर ने जब उसको लिख के दिया कि आपका बेटा कुछ नहीं कर सकता, हम आपके बेटा को स्कूल से निकाल रहे हैं, तो मम्मी से वो पूछा, मम्मी ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है सर ने? तो मम्मी ने कहा, आपका बेटा बहुत स्पेशल है, हमारे स्कूल में कोई टीचर नहीं है इसको पढ़ाने के लिए, इसको दूसरे स्कूल में, बढ़िया स्कूल में दीजिए। तो अगर माँ ने ये झूठ नहीं बोला होता तो क्या आज हमारे बीच में आइंस्टीन होते? बिल्कुल नहीं होते। आइंस्टीन होने में अपन जिंदा मरना वाला बात नहीं बोल रहे हैं, उनका पहचान के बारे में बता रहे हैं। वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर्मूला भी है। तो आप देखिए, कभी कभी कुछ झूठ अगर मोटिवेट करने के लिए कहा जाता है, दैट इज गुड। तो ये झूठ बोल सकते हैं हम, बिकॉज इट इज फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर, इससे किसी का भला हो रहा है। या सर, ऑफकोर्स सर, यू आर राइट। ठीक है, नाउ ऐसे सर, रीच, यू कैन से ट्राई टू रीच ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आप हर एक का ख्याल रखने का कोशिश करो, आकलन करना है, एनालाइज करना है, डाटा तैयार रखना है आपको बच्चों के बारे में। हम लोग एक ग्रुप भी बना सकते हैं और उसके अनुसार हम लोग एफर्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं, सो दैट फॉर दैट फुल डेवलपमेंट एंड कुरिकुलम भी इनहेंस हो, रिजल्ट अच्छा हो। ठीक है, ऑल अराउंड रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए। हर स्कूल का ये डिजायर होता है कि सभी बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो, इंप्रूवमेंट हो, तो पेरेंट्स भी खुश, एडमिनिस्ट्रेशन भी खुश, दुनिया खुश। अंडरस्टूड? उसके बाद आप एक अच्छा ऑर्गेनाइजर हो। ठीक है, आप चीजों को ऑर्गेनाइज करने बच्चों को सिखाएंगे तो वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजर भी बन जाएंगे, क्योंकि आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, अब आप सिखा रहे हो उसको। नाउ यू आर मेकिंग देम टू लर्न, ओके, दैट you should plan it and how to execute for the plan with certain steps, and they will surely learn. Understood? Now next point, participant. मैं अपने बच्चों को बोलता हूं, दो तरह से भागना होता है। एक होता है भाग लेना, पार्टिसिपेट, एक होता है भाग जाना, स्केप। तो जो भाग लेता है वो आगे जाता है, और जो भाग जाता है वो पीछे रह जाता है। तो हम लोगों के ऊपर है, इट फुल्ली डिपेंड्स अपॉन अस कि कौन सा भागना है, भाग लेना है या भाग जाना है। तो पार्टिसिपेट करना होगा। जो भी वेरियस कंपटीशंस यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट सो दैट दे विल व्हाट, डेवलप देयर स्किल्स, तभी उसका विकास होगा। आप डायरेक्ट अगर किसी को माइक थमा दोगे, बोलोगे फलना टॉपिक पे स्पीच दो, ही और सी विल बी ट्रेमलिंग, चाहे वो जून का महीना भी क्यों ना हो, उसको ठंड लगेगा। वहां ठंड एज ए सेंस ट्रेम्बल, स्टेज फोबिया होता है ना। लेकिन अगर आप उसको प्रिपेयर कर दोगे, वो पार्टिसिपेट जब तक नहीं करेगा, प्रिपेयर आप कर नहीं सकते हो, तो उसको वो भी मोटिवेट करना है। वेदर यू विन और लूज डजंट मैटर, बट योर पार्टिसिपेंट मैटर्स। आपका जो पार्टिसिपेशन है वो मैटर करता है। कम से कम पार्टिसिपेट तो करो, जीत हार के लिए तो नहीं करना है, ये लगा रहता है, बट पार्टिसिपेट करो, ये आपको सिखाएगा। जीत आपको इनकरेज करेगा और हार आपको इनकरेज करेगा आगे ले जाने के लिए कि नहीं मुझे और अच्छा करना है। जीत आपको अप्रिशिएट करेगा, मैं अच्छा कर रहा हूं, इसको बरकरार रखना है। फिर एक चीज है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, ये सबसे अच्छा मैं ही हूं, ये फिर दूसरा चीज हो गया। अंडरस्टूड? दिस इज द व्हाट, प्रे फॉर ओवर कॉन्फिडेंस, दैट शुड नॉट बी। व्हाई? बिकॉज लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। चाहे कोई कितना भी पीएचडी वगैरह भी कर लेना, अगर वो बोलेगा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं ही हूं इस दुनिया में या अपने फैमिली में, ये गलत बात बोल रहा है। बिकॉज लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, डिग्रीज आर डिफरेंट थिंग। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हो गया, ट्यूटर तो बता ही चुके हैं। सो दीज आर सम ऑफ द यू नो दैट रोल्स ऑफ टीचर। चाहे कितना भी ऑनलाइन फैसिलिटी आ जाए, आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे, जो यहाँ पे इंग्लिश के सब्जेक्ट के टीचर हैं, द फन दे हैड। Ma'am, can you define what was there in chapter in short? Yeah, exactly. As we know that in Corona period, we used to teach them with the help of mobile. Okay. In that chapter, it is written that when there will be no books, no copy, then we will read from computer. All the students will read from the computer, and it will help from, they will take help from mobile.
The conclusion is that there will be no books, no copy, only we can say the interesting, we can say that the humor, entertaining, when we see the things in pictures, it will be more interesting. So it is, in that chapter it is written that only television, computer and mobile will help the student to teach, to study. Okay? Okay, thank you. This is the conclusion of that chapter. You are right, ma'am. But despite of that, ठीक है, वो मैम बिल्कुल सही बोली, दैट वाज द एरा. लेकिन आप बताओ कभी भी ऐसा पॉसिबल, इज इट पॉसिबल दैट विदाउट टीचर इट विल बी गुड टॉट? नेवर. चाहे कितना भी टेक्नोलॉजिकल आ जाए. आप याद करिए चैप्टर का नाम पढ़ा, द फन दे हैड मतलब समझे. हाँ, बिल्कुल जैसे अभी हम लोग ह्यूमन टीचर्स लोग जाके पढ़ा रहे हैं स्कूल में. तो ऑनलाइन पे जब पढ़ाई हो रही थी, क्या बच्चे खुद से पढ़ रहे थे? हम लोग आ रहे थे ना पढ़ाने के लिए मोबाइल से भी. तो टीचर्स इन दैट सेंस ऑल्सो, व्हेन वी टीच फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड और फ्रॉम द मोबाइल, वी आर देयर. ओके, विदाउट टीचर इट इज इनकम्प्लीट. आई थिंक सो. व्हाट डू यू से? इट इज फैक्ट ना? यस, वी आर प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. We are the. All up now at first I want to call the fun they had. They got a book, like printed book. When they think about this, the computer and etc., and then he feel that in old times, in our time, this time, now present time, because the story is 2157. अभी से उतना साल पहले का है, तो अभी के बारे में जब वो लोग सोच रहे हैं, उन किताबों को सोच रहे हैं, एंड सम टॉपिक्स आर डिस्कस्ड. दे हैड ए बिल्डिंग, सम ऑल स्टूडेंट्स कम देयर, टेक होमवर्क, डूइंग एंड लर्निंग सेम थिंग. Then both of the students who are going to E-classes, they think that how deep fun they had. Why we have not this type of fun? This is the also I think the. That's what I wanted to listen, and this is the fact. आप देखिए उसने बोला द फन दे हैड, कितना अच्छा हुआ करता था. टीचर जाया करते थे, बिल्डिंग सेम एज के लोग एक क्लास में बैठा करते थे, टिफिन किया करते थे, इंजॉय किया करते थे, खेल कूद. लेकिन अगर कोई रोबोटिक टीचर हो, मैकेनिकल टीचर हो, तो आप देखिए मोनोटोनस क्लास होगा कि नहीं. जस्ट इमेजिन, विल इट बी मोनोटोनस? अब वो मैम भी ठीक बोली, अगर उसमें भी है तो हम ही लोग ना पढ़ा रहे हैं. बिल्कुल सही. तो ह्यूमन टीचर के मतलब अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है. ऑफलाइन क्लास मैटर्स. दैट्स व्हाट द कंक्लूजन इज देयर. डिस्पाइट द एबंडेंस ऑफ ऑनलाइन मटेरियल्स, टीचर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन एजुकेशन टुडे और नॉट. क्लैप फॉर ऑल टीचर्स. कभी हम लोगों का कोई पहचान नहीं छीन सकता, चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी इनहांस की ना. अगर मशीन सब काम कर देगा तो ऑन करने के लिए तो हम ही लोग चाहिए, इंसान ही चाहिए, चाहे वो रिमोट से चले. बिल्कुल बिल्कुल ऑटोमेटिक भी हो रहा है भाई, तो उसको ऑन करना होगा. तो बिल्कुल सही मैम. अगर ह्यूमन का रोल नहीं होगा तो क्या ये मशीनरीज चलेंगे? बिल्कुल नहीं. दिस इज माय टॉपिक. चाहे कितना भी ऑनलाइन रिसोर्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन रोल ऑफ टीचर्स आर नॉट गोइंग टू बी फिनिश्ड. ये याद रखिए, चाहे कोई भी जनरेशन हो. सो फील प्राउड ऑफ बीइंग टीचर्स. एम आई राइट? कैन आई हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, इमोशनल सपोर्ट एंड मोटिवेशन. बच्चों को ये बहुत जरूरी है. सिंपली बच्चों को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, दिस विल नॉट वर्क आउट. घर में झगड़ा हो गया तो थर्ड पार्टी रिचार्ज हो रहा है. मतलब समझे? आई विल नॉट गो टू पर्सनल, बट ये सही बात है. एक्स वाई का झगड़ा है, हस्बैंड वाइफ का, तो उधर निकल जाता है गुस्सा. शायद बच्चे को चेहरा वही बीबी का याद कर रहा है, दे रहा है. अब बीबी भी अगर मार रही है तो वो हस्बैंड को याद कर रही है. और घर में क्या होता है? थर्ड पार्टी रिचार्ज हो रहा है. पति पत्नी को एक स्कूल में काम करने नहीं मिलता है इसी वजह से. लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये दोनों एक ही जगह काम करते हैं, क्या ऐसा होता है? मैम दिस इज वेरी कॉमन. ओके, अगर ऐसा नहीं होता है तो झूठ बोल रहा है वो.
नहीं स्कूल में नहीं, क्योंकि मैं सीनियर सेकेंडरी में हूँ, वो जूनियर विंग में है, एंड शी इज ऑल्सो टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनसीसी ऑल्सो जस्ट लाइक यू मैम, तो आप समझ सकते हैं ऐसा है। लेकिन देखिए कभी कभी घर में भी टिफिन रखा हुआ है, दीवार से बात हो रही है, बात समझे? तो इधर से रिप्लाई आ रहा है नहीं खाना है मुझे, दीवार को बोल रहे हैं, लेकिन सुन रहा है दीवार भी, इसलिए सही बोलता है, दीवारों के भी कान होते हैं। अब बच्चा का क्या रोल है? बस उस पर बंदूक रखना है, चल रहा है। जैसे देखिए मैम है, सुमिता मैम है, प्रिया, इन लोग का निशाना बहुत अच्छा है, तो इन लोग के हस्बैंड लोग को भी थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। सो दिस द फैक्ट। एनीवेज, तो हम लोग को इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है। बेटा यू कैन डू दिस, हारो मत, बात समझे? ऐसे मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन ये राइमिंग हो जाता है। मैं बच्चों को ऐसे इंकरेज करता हूं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और हारने वाली क्या बात है जब आपके साथ सरअमित। ठीक है? वाई? बिकॉज दिस इज माई कॉन्फिडेंस दैट नो आई कैन चेंज। इसमें बदलाव आ सकता है। मैं बचपन से ही थोड़ा गाना वगैरह भी, लिरिक्स वगैरह भी बिगाड़ने का आदी हूं, लेकिन अब उसको जब पॉजिटिव में कर रहा हूं तो किताबें लिख रहा हूं, पोएम्स लिख रहा हूं, जिसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला इन द सेक्शन ऑफ राइटिंग बुक्स विच इन जस्ट गोइंग टू पब्लिश। आई थिंक न्यू ईयर में एक नया गिफ्ट दे सकते हैं आप लोग को, दैट विल बी लेटर ऑन डिस्कस्ड। सो ये आप देखिए, अगर इमोशनल हम बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे ना, द किड्स विल बी डिमोटिवेटेड। घर में भी वैसा फ्रस्ट्रेशन है, स्कूल में भी बहुत बच्चा इसलिए भी स्कूल रेगुलर आता है ताकि वो घर का फ्रस्ट्रेशन से थोड़ा दूरी बना के रखे। दिस इज द फैक्ट और नॉट? बात समझ रहे हो? या बहुत बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट, हमेशा इतना ओवरबर्डन हो जाता है होमवर्क का, डांट फटकार का, तो वो बच्चा एक्सक्यूज दे देता है कि मेरा पेट में दर्द है, मेरा सिर में दर्द है, पानी भर लेगा मुंह में, उल्टी हो रहा है। अंडरस्टूड? प्लेंटी ऑफ। मैं भी क्या करता था व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो दिस इज यू नो दैट एक ट्रेडिशन है जो चलता आ रहा है। तो हम लोग को इमोशनल सपोर्ट और मोटिवेशन बच्चों को देने की बिल्कुल जरूरत है। एम आई राइट? उन लोग को मोटिवेट करना है। अंडरस्टूड? तो जैसे ये वर्ड है मोटिवेटिंग, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। कभी कभी गलती से भी गलती हो जाया करती है, ठीक है? आई होप दिस रिकॉर्डिंग विल नॉट गिवन टू एनीबडी। ओके, थैंक यू, देन आई एम सेफ। होता क्या है, मेरी एक दोस्त थी बहुत अच्छी, शिल्पा बोल के, ठीक है, व्हेन आई वाज इन स्कूल, और वो थोड़ा हेल्दी थी। तो मेरे जो टीचर इंग्लिश के थे, मैं यू नो व्हेन आई वाज इन क्लास 5, सभी से कॉपी में वर्ड नोट्स को वगैरह को थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा था इंग्लिश में। अब मैथ साइंस का बताएंगे नहीं कि हम बहुत खराब थे, फेल किया करते थे। ओके, तो होता क्या है, वर्ड्स को लेते थे, तो इंग्लिश टीचर ने मुझे पढ़ाया गाय। तो गाय का मतलब होता है फ्रेंड, होता है ना? अब वो जो मेरी दोस्त है, बहुत क्लोज थी, थोड़ी हेल्दी थी, बाय द मर्सी ऑफ गॉड, तो हम सोचे कि ये वर्ड हम उस पर यूज करते हैं। हे शिल्पा, यू आर ए वेरी नाइस गाय। तो ये गाय उसको समझ नहीं आए, बात समझे? उसने शिकायत कर दिया संस्कृत टीचर को, जो नेक्स्ट पीरियड में था, एंड शी वाज वीपिंग। लड़की का आंख में गंगा, यमुना, सरस्वती, रवि सब बह जाता है तुरंत। नेक्स्ट टीचर आया। अब पहले जानते हो टीचर लोग मार मार के बच्चा को 6 पैक बना लेता था। अब तो बहुत सारा नॉर्म्स है, नहीं, अब हाथ बंधा हुआ है, जो आपको मोटिवेट करना, इंकरेज करना। पहले नहीं होता था, ऐसा होता था? नो। सो यू नो, अब वो टीचर आए, क्या हुआ? सर आपको गाय बोल दिया अमित। और तभी हम ऐसे थोड़े थे, ऐसे थे। सरकार छत में चढ़ने मना किया था। बोलिए क्यों? हवा तेज चले, कहां जाएगा? पाकुड़। जय श्री राम। इट वॉज जस्ट लाइक दैट। तो यू नो, अभी भी फिर सरकार मेरे को मना कर दिया छत में चढ़ने। क्या गारंटी है छत का मजबूती का? अंबुजा सीमेंट से बना है कि नहीं, गॉड नोस। सो यू नो, तो वो पिटाई कर दी है मेरी। क्यों बोला तुम गाय? तुम अपने देखो जिराफ है, हैं? खाना तुमको खा जा रहा है, तुम खाना नहीं खा रहा है, लाइक दैट। यू नो, वो तो समझे नहीं टीचर, वो पीट दिए। इधर एक छड़ी पड़ा, यहाँ जीटी रोड बना लाल, फिर इधर एनएच रोड, इधर जाते जाते बाईपास भी दे दिए। अब बोलिए, पतला दुबला हाथ में आदमी, बच्चा पूरा रोने लगे। अब हम रोने लगे। अब पूरा गुस्सा आ रहा था हमको, किस पे बताइए तो? टीचर पे। गाय। तब पता है उसके बाद आई सोशल साइंस टीचर, हु इज शी वाज आल्सो फॉन्ड ऑफ इंग्लिश।
देखिएगा जिसका एसएसटी अच्छा है इंग्लिश भी अच्छा ही होता है, इंग्लिश अच्छा है एसएसटी में भी कमांड होता है, दिस बेसिक थिंग। तो वो जो आई ना, इतना बड़ा मोटा भार्गवा डिक्शनरी लेके आई, पूरा पहले मैटर पूछी क्या हुआ अमित तुम क्यों रो रहे हो, उधर शिल्पा भी अलगे रो रही है, तो बोले दिस सर यूज दिस वर्ड सो आई यूज्ड ऑन हर, इट वाज फॉर गुड सेक नॉट फॉर मेकिंग फन। भार्गवा डिक्शनरी लेके आई, दिखाई गाय का मतलब फ्रेंड, कॉमरेड, असिस्टेंट, एसोसिएट, पाल, और चाहिए। तब उसके बाद टीचर जो आए उनको बताया सर आपने गलती से उसे पीट दिया है, इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट। शिल्पा तो क्लियर हो ही गई, क्लियर हो गया। अब वो सर आए ना पतले दुबले, अरे अमित कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सही है। उसमें भी मेरा कंधा का दर्द अलग हो गया, वो हाथ दर्द तो तुरंत छूट गया, वो कंधा वाला 3 दिन नहीं गया। ये सब होता है सर, गलती गलती किसी से भी, चलो तुम बहादुर है, उसमें जो कंधा में दिए ना वो 3 दिन दर्द रहा मेरा, सी। और उसके बाद क्लाइमेक्स ये है कि शिल्पा से जिंदगी में बात नहीं की, वो कितना सॉरी बोली तो डिड नॉट, तो होता है गलती हम लोगों से भी हो जाता है, इसलिए सिचुएशन को जान लेना है कि क्या ये कटाक्ष सच में था या ये गलती से गलती हो गया। वी हैव टू फाइंड आउट। बच्चे को तुरंत पनिशमेंट नहीं कर देना, क्लास से बाहर कर देना, ये आप उसका रीजन को जान लो। आई एम गिविंग माई एग्जाम्पल बिकॉज इट इज अ फैक्ट, ये हुआ है हम लोगों से गलती, टीचर्स कर सकते हैं, हम लोग भी कभी कभी गलती, हम लोग देखिए एरर करते हैं, इंग्लिश में ही बोल रहे हैं। एक बार की बात है, स्कूल में पढ़ा रहे थे, एडजेसेंट था नीम का पेड़ का बड़ा सा डाल, उसमें एक लंगूर आ गया, शुरू हो गया, सब तुरंत चना निकाला, ब्रेड निकाला, बिस्किट सब ऑफर करने लगा। डर नहीं लगेगा जी, प्रिंसिपल आएंगी अगर देखेगी तो क्या बोलेगी, क्या हो रहा है क्लास में, तो हम उसमें चिल्लाएं, हे व्हाई आर यू लुकिंग मंकी आउटसाइड इफ आई एम इनसाइड। समझ में आया? तो ये कहने का मतलब था कि हम यहां बोलना कुछ और चाह रहे हैं, मीनिंग कुछ और निकल। अब देखिए लीव एप्लीकेशन, एक एम्प्लॉय अपना बॉस को लिखता है, एज माई मदर इन लॉ एक्सपायर्ड एंड आई एम ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर हर, आई वांट 12 days लीव। इसका मतलब समझे? इससे भी ब्लंडर होता है, सेंस कुछ और निकल रहा है, बात समझे? एज आई एम गोइंग टू सेल माई लैंड अलोंग विथ माई वाइफ, आई वॉन्ट 2 days लीव। समझ में आया? तो होता है, सेंस आपका कुछ और है लेकिन देखिए मीनिंग कुछ और निकल रहा है। तो ये आपके ऊपर है, आप किस सेंस में समझा। हिंदी में भी होता है, हिंदी में भी होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। मेरे घर का आपको बता रहे, दूसरे का छोड़िए ना। अब मेरी आंटी ने मेरी मम्मी को बोला, बेबी बाबूजी का मुंडी तो काट के पपीता तो काट के दे दीजिए, बाबूजी को काट के पपीता दे दीजिए। तो एक बात बताइए, बाबूजी को ही काट देंगे तो पपीता खाने वाला बचा कौन? अच्छा, माँ बाप का जूठा तो सब खाते हैं, जब हम लोग छोटे थे नहीं खाते थे, झूठ बोल रहे हैं आप, खाते हैं कि नहीं? जूही बड़े पापा का मुंडी पीस कटोरा में रखा हुआ है, खा लेना। समझ में आया? बड़े पापा का मुंडी पीस है, मछली का है। तो ये होता है, एरर होता है, लेकिन हम लोगों के ऊपर है कि उसको समझाना कैसे है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फैसिलिटेटर्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, हम लोग को जितना कन्वीनियंट है बच्चों के लिए प्रोवाइड करना है। अंडरस्टैंडिंग, इन द फील्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जितना कन्वीनियंस आप बनाएंगे उतना हम लोग आगे जाएंगे। वाई? बिकॉज ऑल आर लर्निंग। ठीक है, तो एक अच्छे फैसिलिटेटर भी हैं हम लोग, और क्रिटिकल थिंकिंग, बी ए थिंकिंग फैसिलिटेटर, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड इंगेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। जैसे आपको ये ध्यान देना है कि सारे बच्चे के साथ आप कम्युनिकेशन में हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, यू आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ योर क्लास, एंड इट कैन बी ओके। कोई बंक मार रहा है, कोई बातें कर रहा है, तो आप उसको ऐसा कम्युनिकेट करो कि वो आपके सुनने के लिए आतुर हो जाए। अंडरस्टूड? सो इन दिस वे लर्निंग विल श्योरली बी इनहैंस्ड। अंडरस्टूड? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। असेसमेंट एंड फीडबैक, रेगुलर टेस्ट लेते हैं कि नहीं हम लोग, बताइए। कोई टॉपिक पढ़ाएं, कोई चैप्टर पढ़ाएं, तो उसका फीडबैक लेने के लिए हम लोग टेस्ट लेते हैं। Why do we conduct test? Can anybody say? अगर हम लोग क्लास में टेस्ट लेते हैं, स्कूल में एग्जाम लेते हैं,
What will be the main motive of that? To publish result only and for organizing PTM? Is it so? So what will be the inner motive of that? Yeah, ma'am, you want to say? हमने जो पढ़ाया है बच्चा उसे कितना एब्जॉर्व किए हैं, बच्चा कितना समझे हैं, बस ये हमको भी अपना जानना है कि आखिर मैंने जो उसे 45 मिनट्स के क्लास में बताया तो बच्चा एक्चुअली में कितना गेन किया. दिस इज द वेरी कॉमन पॉइंट. ओके, तो ये बहुत जरूरी पॉइंट होता है. ठीक है, असेसमेंट एंड फीडबैक, कुरिकुलम इंटीग्रेशन. ठीक है. अच्छा, एक बताइए, किसी बच्चे को सिर्फ एक सब्जेक्ट में कमांड होने से हो जाएगा? उसका फुल राउंड डेवलपमेंट हो गया, ऑल अराउंड? नेवर. अगर XY मैथ्स में बहुत अच्छा है, सोशल साइंस में बहुत पुअर है, तो क्या आपका सक्सेस हो गया? नो. अगर मैथ्स टीचर बोलेगा देखिए मेरा सब्जेक्ट में तो अच्छा है, सबको सुनाएगा, सोशल साइंस तुमराम तो फेल किया ना, हिंदी में तुमराम भी तो सुने 13 नंबर लाया, अपना नंबर याद नहीं, दूसरे वाला नंबर सब याद हो जाता है. सो इज दिस द वे? नो. हम लोगों को क्या करना है? टीम वर्क के साथ एक कोलैबोरेटिव एक्ट करना है, एक्स्ट्रा क्लास लेना है, ताकि हर सब्जेक्ट में बराबर का आकलन हो, चाहे वो एवरेज ही क्यों ना हो. तो सक्सेसफुल तो सब सब्जेक्ट में हुआ. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैथ में सुपर स्टार, और बाकी बात सब में बेकार. तो यही है जीने का आधार? नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं. एम आई राइट? है कि नहीं? तो ये चीज को हम लोग को देखना है. We have to equalize each and every subject of the curriculum. तब हम सक्सेस पाएं. और एक चीज याद रखिए, कोई एक टीचर नहीं होता है सक्सेसफुल के लिए, होने के लिए सभी टीचर का इक्वल रोल होता है. एक टीम वर्क है. ऐसे बोलते हैं ना, इंडिया बैटिंग कर रहा है, कभी बोलते हैं कोहली बैटिंग कर रहा है. क्या कोहली अकेले खेल रहा है इंडिया के लिए? नो, इट्स अ टीम वर्क. इंडिया जीत गया, कहां बोलता है कोहली जीत गया, रोहित जीत गया, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं. तो ये टीम है. अगर हार है तो हम लोग सब अनसक्सेसफुल हैं, जीत है तो सभी सक्सेसफुल हैं. एम आई राइट? करेक्ट. कैन आई हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, बिल्कुल सही. अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू द इंपैक्ट ऑफ पावर बैंक. ठीक है, वी हैव टू बी एक्सपर्ट, वी हैव टू गेट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, सो दैट द स्टूडेंट्स विल बी व्हाट? इंप्लीमेंटिंग दोज थिंग्स. अगर हम खुद नहीं होंगे तो क्या बच्चों में इंप्लीमेंट करने में सक्षम होंगे? बिल्कुल नहीं. सपोर्ट बियॉन्ड एकेडमिक्स, ये पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करना चाहिए. सपोर्ट बियॉन्ड एकेडमिक्स. कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, कुछ दिनों से वो अभी ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो मे भी हम लोग को एक सपोर्ट करना है उसको कि क्या हुआ, वाई ही और सी इज लैकिंग, उसका रीजन फाइंड आउट करना है. उसके लिए क्या करना होगा? काउंसलिंग. ठीक है, आप उससे पर्सनल इमोशनल होके भी पूछ सकते हैं, बिना डांट फटकार. तुम नहीं किए, कंक्लूजन दे दिए, तुम बहुत बेकार है, फिर से डिमोटिवेट, फिर वही गलती हो रहा है. बात समझे? तो हम लोग को क्या करना है? सपोर्ट करना है, एकेडमिक्स के परे भी. कम्युनिटी एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, बिल्कुल सही. अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग पेरेंट्स मीटिंग क्यों करते हैं स्कूल में? फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स. और इसमें एक प्रोफेशनल एटीट्यूड भी है मैम. बोलिए क्यों? आज इसका बच्चा, बेटी 9 में है, यहाँ मेरे स्कूल में पढ़ रही है, बेटा अभी 4 में है, 5 में यही लेगा ना. अच्छा फीडबैक मिला है जो. दैट इज अनदर थिंग मैम. तो ये सब चीज मायने रखता है. इफ योर सर्विस इज गुड, डेफिनेटली इट विल बी अप्रिशिएटेड बाय ऑल. और आपका ये कंसिस्टेंसी चलता रहेगा. एम आई राइट? तो ये क्या होगा? तब बच्चा का रिजल्ट अच्छा होगा 10 में, तो नेचुरल है कि अगर बच्चा 8 में वहां फिर से 9 में गया तो उसका भी 10 में अच्छा होगा. दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी. दिस इज कॉल्ड फुल डेडिकेशन एंड डिवोशन, विच विल द मैटर ऑफ इंस्पिरेशन. ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट है जो हम लोग को नोट करना है. प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल बेस्ड. ठीक है, आपके लिए बहुत सारा स्किल्स इनहेंस करने का तरीका है जिसको आप अपना सकते हो. ठीक है, एक्टिविटी करा लेना है क्लास में, प्ले करा लेना है, कुछ इलिस्ट्रेशंस देना है, एग्जाम्पल्स देना है, सो दैट दे विल बी फॉन्ड ऑफ स्टडिंग. इंटरेस्ट जगाना है, जो कि बहुत चैलेंजिंग वर्क है हमारे लिए. इट्स अ ग्रेट चैलेंज फॉर अस टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स. कैन आई हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? ओवरऑल, while online materials offer valuable resources, the role of teachers remain indispensable. इस वर्ड को आप नोट कर लेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है,
इंडिस्पेंसेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यू वुड से, ठीक है, इंडिस्पेंसेबल। और एक वर्ड होता है जिसको कभी हराया ना जा सके, इनविंसिबल, ठीक है। तो हम लोग को हारना नहीं है, ऑल टीचर्स आर इनविंसिबल, अंडरस्टूड, बिकॉज दे आर कैपेबल, they are able, they are the motivators, they are the inspirations, you know that. तो इसके कारण से भी, and in delivering a comprehensive and effective education, so it is very indispensable, ठीक है। कितना भी ऑनलाइन मटेरियल्स आ जाए, टेक्नोलॉजी इनहेंस हो जाए, द रोल ऑफ टीचर विल नेवर बी फिनिश्ड। इसका रोल तो रहेगा ही रहेगा। आप अगर स्मार्ट क्लास भी लेते हो, ऑन तो आप ही कर रहे हो, एग्जीक्यूट तो आप ही कर रहे हो, आपके बिना होगा? ऐसा है? एलेक्सा वाला सॉन्ग है क्या? एलेक्सा सॉन्ग झलक दिखला जा, इट्स नॉट लाइक दैट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए रोल ऑफ टुडेज टीचर्स इन अ नटसेल, ठीक है। लेसन्स इंपार्टेड बाय टीचर्स आर टिपिकली मोर स्ट्रक्चर्ड एंड गाइडेड। आप जो भी बनाते हो लेसन्स, जो भी प्रिपेयर करके आते हो, वो फुल्ली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। कंटेंट शुड बी नाइस एंड इफेक्टिव एंड फुल ऑफ लर्निंग, कन्वीनियंट फॉर ऑल, ठीक है। मैंने आपको फिर से कहा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी इनहैंस्ड, अदरवाइज यू आर not having the success. And it provides students with regular feedback on their progress. As you conduct tests, we conduct exams. So according to the evaluation, according to the performance of the students, we can give the feedback to the parents, to the school authority. No, this class is very good. Yeah, this class needs to be improved. Now they are working hard. Okay, but never say we cannot change them. It is in their mind. They are very stupid. They are you can say incorrigible. Incorrigible मतलब होता है बिल्कुल, which cannot be changed, है ना। एक चैप्टर भी था। तो it also offers the opportunity for students to interact with their peers and teachers in person. It enhances the students for interaction. I would say participation. When you motivate the students to participate, they will definitely motivate one day. Understood? Clear? The last point, today's teachers teaching often include hands-on activities and other forms of experiential learning. एक्सपेरिमेंट से भरा हुआ रहता है, ठीक है, केस बेस्ड होता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, और ज्यादा लर्निंग इनहेंस होता है, विच इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। और बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं। तो दीज आर वेरियस वेज और रोल्स ऑफ द टीचर्स इन टुडेज एरा, एंड विच इज नॉट गोइंग टू बी वेनिश्ड, विच इज नॉट गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट एनी हाउ। दिस इज द प्राइम फैक्ट, माई डियर टीचर्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ डिस्कशन टाइम। चलिए, हम लोग तो बहुत बक लिए। Is it possible to change a traditional teacher with a good tutorial video? Who will say this? Is this question clear to you? Who will answer? Is it possible to change a traditional teacher with a good tutorial video or any electronic gadgets or any technical aspects? Who will explain? Training to all the teachers, whether it is old teachers, older one, or the newcomers. They are getting knowledge, they are getting the training. So I think if they are educated, they can. If they will try, I think so. Yes, ma'am. You mean to say, as I understand, you want to say that we have to be updated with the passage of time. Correct. ठीक है, एज नो बार। देखना आप, डेफिनेटली डिजायर, क्यूरियोसिटी, दैट शुड बी देयर। नहीं, मेरे से कैसे नहीं होगा, हो जाएगा। आपको मैं बता देता हूं, KFC के जो ऑनर है ना, KFC वर्ल्ड ब्रांड है, सुने हो, चिकन वगैरह। मैं तो वेजिटेरियन हूं, पाप लगेगा बोलने में, लेकिन बोलेंगे। KFC के जो ऑनर है ना,
वो 67 इयर्स एज था उनका, तब उन्होंने बिजनेस किया। आज वो वर्ल्ड क्लास बिजनेस में है कि नहीं? सब चबा के खा रहा है कि नहीं? एम आई राइट? तो आप देखिए, एज बार है बिजनेस के लिए भी। बिल्कुल सही। उनका तो शायद इमॉर्टल वर्ड उनके लिए पीछे है। बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे, कहां हारे? कंपटीशन कम था, ब्रांड कम है, लेकिन क्या वो अपने आप को कंसिस्टेंट रखें कि नहीं? अगर वो बोल देते नहीं भाई अब तो मॉडर्न एरा आ गया है, अब यही लोग चलेगा, हम बैकआउट कर जाते हैं। मैंने कहा ना, भागना नहीं है, भाग लेना है। अगर आप भाग ले रहे हो तो निरंतर भी रहना है, तब आप जीतोगे। Yeah, actually they are not willing to do. They are not willing to learn. Yeah. नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? Learning is a continuous process. Until we die, we learn. That is correct. Next slide, please. आप एक छोटा सा वीडियो है, आप इसको देखें। Julie, I request for sound. Little bit increase sound. Have a glance. I had a teacher when I was a 10-year boy. Went to the blackboard, put a sketch of a bird. You know bird how it looks like? Put a wings, tail, nose and all, started explaining. Then took us to seashore, showed us how the bird flies, the flapping the wings and all. On that day, I knew not only how a bird fly, my aim in life also shaped on that day. The solution to long-term employment and employability lies in civil society and market business. And what do I mean by this? One of the most important fundamental changes are required in the mindset of Indians, where we first start getting back to respecting teachers. ओके, सो फील प्राउड बीइंग टीचर। आप देख सकते थे इस वीडियो से, ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न तक आया, लेकिन टीचर का कंसिस्टेंसी कोई नहीं स्नैच कर पाया और ना कर पाएगा। Am I right? So please big applause for all teachers of the world because they are changing the world. ठीक है, चाहे कितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाए, फिर से मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं, टीचर का जगह कोई नहीं ले सकता है। Am I right? Next slide, please. So today, a teacher's responsibility goes beyond expecting students to follow as they lead a strategy that has been used for centuries. सदियों से चला रहा है। Understood? ट्रेडिशनल हुआ करता। अच्छा, एक बात बताइए, ऑक्सफोर्ड में आप पढ़ रहे हो, आपका ध्यान नहीं है, सारा फैसिलिटीज है, एक एक बेंच में माइक लगा हुआ है, सारा फैसिलिटीज है, एसी रूम है, सब कुछ है, कॉन्फ्रेंस है, लेकिन अगर आपका ध्यान कटहल के पेड़ के नीचे ही अगर आप चटाई बिछा के पढ़ रहे हो और ध्यान पढ़ाई में है, बताइए कौन सा पढ़ाई बेहतर है? भाई, बहुत सारे बच्चों में भी ऐसा होता है, किताब खोला हुआ है एंड देयर माइंड इज इनटू द अनदर वर्ल्ड फॉर द सेक ऑफ शोइंग टू पेरेंट्स। ओ मम्मी आ रही, हाँ, किताब के अंदर में मोबाइल है। द ग्रेट ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस यूड से, है ना। आज के डेट में कोविड जो है, भले ही मोबाइल में कुछ देर संभाला,
लेकिन बिगाड़ भी दिया है बहुत कुछ। और ये इनक्यूरेबल डिजीज टाइप का लग रहा है। देखिए बच्चे फॉन्ड ऑफ हो गए मोबाइल का। ये थोड़ा सा डिटैच थे तो बहुत कुछ अच्छा भी था, लेकिन आज के जनरेशन में मोबाइल इज हिंड्रेंस, है कि नहीं? ऑन द अदर हैंड आई वुड से दैट कि चलिए कुछ सपोर्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं हमें, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, दिस इज अ फैक्ट, बट डिस्पाइट ऑफ दैट द रोल ऑफ टीचर विल नेवर बी एंड। आप देखो ऑफलाइन ही क्लास लेते हो, स्पोकन का है या आप कोई लेसन पढ़ा रहे हो, आप कितना सारा इलुस्ट्रेशंस दे रहे हैं, बच्चे कितने सारे पार्टिसिपेशंस कर रहे हैं, अलग अलग टीचर से वो पढ़ रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स मिल रहा है, तो हम लोग का विकास हो रहा है, मीन्स बच्चों का, आपका भी, बिकॉज यू आर सक्सीडिंग। क्लियर? नेक्स्ट, द प्राइमरी रोल्स ऑफ ए टीचर आर प्रोवाइडिंग मेंटरशिप। You have to be good mentor. Why? The students will follow you. That no, my teacher is saying, it means it is the fact. Believe. किसी मैडम ने कहा था ना reliable. Why? Because we are reliable persons. हम लोगों के ऊपर विश्वास होता है, faith, trust. और जहां faith नहीं है, trust नहीं है, बेकार जिंदगी है. Understood? दूसरा पॉइंट है inspiring learners. हम लोग इंस्पायर भी करते हैं। क्लियर? इफ वी आर लर्निंग प्रॉपरली, डेफिनेटली यू आर द मैटर ऑफ इंस्पिरेशन। एंड फॉर इंस्पिरेशन एक कोटेशन था, मुझे याद है, व्हेन आई वाज टीचिंग एट सेक्रेड हार्ट स्कूल, आई रिमेंबर एक सिस्टर मिरियम बोल के आई थी, ठीक है, शी वाज ए, यू कैन से, फैबुलस इंटेलेक्चुअल। तो वो बोली, आई वांट टू इंस्पायर बिफोर आई रिटायर। बात समझे? सो सी द पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला उन्होंने, ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने एक पॉइंट, मेरा काम ही है थोड़ा सा चीजों को बिगाड़ना या बनाना, तो हालांकि मैंने इसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया। जैसे था ना, याद है, जय जवान जय किसान, वाजपेयी सर ने उसे जोड़ा जय विज्ञान, तो ये सुनने में अच्छा लगा ना। तो अब उसमें मैंने उसमें और एक ऐड कर दिया सिस्टर का कोटेशन पे, आई वॉन्ट टू इंस्पायर बिफोर आई रिटायर, बट फॉर गेटिंग दैट यू हैव टू परस्पायर। व्हाट डू यू मीन बाय परस्पायर? परस्पायर मीन्स पसीना। बात समझे? पसीना बहना होगा। कौन सा पसीना? धूप में जाकर खड़े हो गए, पसीना निकल रहा है, दैट पसीना। चाउमीन कचौड़ी सब्जी पूरा खा लिए, सिर से पानी आ रहा है, पसीना? नो, मेहनत का पसीना। योर एफर्ट, योर इंडिवर्स, योर डिटर्मिनेशन, योर डेडिकेशन, योर एफर्ट, तभी वो पसीना काम आएगा। और ये पसीना सक्सेस रूपी टॉवल से आप पूछोगे, अगर ये पसीना आ रहा है तो। एम आई राइट? उसके बाद देखिए, नर्चरिंग हेल्दी क्यूरियोसिटी इन लर्नर्स। बिल्कुल सही, क्यूरियोसिटी होना चाहिए बच्चे के अंदर, मोनोटोनस एक्टिविटी नहीं। क्यूरियोसिटी होगा कि हमें सीखना है, जानना है, तो आप सक्सेस। ठीक है, बच्चों के अंदर वो जगाना है। ठीक है, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट लर्निंग। आप टेक्नोलॉजी का मदद लो, सिखाओ। स्मार्ट क्लास ले रहे होंगे या कोई मोबाइल में ही आप लिंक भेज दिए। इस वेरी, आप तो साग वाला के पास भी है, मोची के पास भी है। मैं उस दिन दाब खरीदने गया, वैलेट ले जाने भूल गया था। दुमका की बात बता रहा हूँ, आई फॉरगॉट टू टेक माई वैलेट, और डाब लेना था, तो देखें चलो अच्छा है मिल जाएगा, वापस नहीं जाएंगे वैलेट लाने। क्यों? उसमें फोन पे का बारकोड सटा हुआ था उसी डाब में। सी द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। वापस तो नहीं लाए, अगर किसी एक्स वाई को बोले हैं लेके आएंगे तो आए कि नहीं जी, तो टेक्नोलॉजी का इस तरह का मदद ले सकते हैं आप। अंडरस्टूड? इफ यू आर हेल्पिंग एनीबडी while paying something, that shows your charity, that shows your kind heartedness. Understood? Clear है? And researching learning strategies, नए नए तरीकों को हम लोग को तरीकों को जानना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, न्यू वेज आर इनोवेटिव, जिसको बोल सकते हैं आप, यू कैन से इट एज इनोवेशन। ठीक है, नेक्स्ट, ये आप देखिए एक पिक्चर कंपोजिशन है। ये एक पता है रियल हाथी नहीं है, आप गौर से देखिए इसको, देखिए गौर से देखिए। ऐसा है कि घर के सामने एक हाथी खड़ा है। व्हाट डू यू सी इन दिस?
क्या एक घर के सामने हाथी खड़ा है? Who will say? गौर से देखिए इसको। आपको बता देते हैं, ये एक साधारण सा घर है, इसमें पेंटिंग किया हुआ है। देखिए कितना इनोवेटिव लग रहा है कि नहीं। तो बच्चों के साथ भी हम लोग पिक्चर कंपोजिशन लर्निंग स्टेज में, फॉर प्राइमरी किड्स ऑल्सो, सेकेंडरी में भी काम आ सकता है। तो ये एक इंटरेस्ट जगह की नहीं बच्चों में, अरे बहुत अच्छा चीज है। नाउ माय डियर सर शुक्ला सर विल ऑल्सो गिव इन स्लाइड, वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड्स ही विल शो यू। तो आप देख सकते हो इसमें उस घर में एक दो चीज हो गया फायदा, एक ये डेकोरेशन भी हो गया और बच्चों के अंदर इंटरेस्ट भी जग जाएगा कि ये थोड़ा इनोवेटिव है। बात समझे? सिर्फ लेक्चर मेथड दे देंगे, दिस विल नॉट वर्क आउट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप देखो, व्हाट डज दिस पिक्चर गिव मैसेज? इस पिक्चर से आपको क्या मैसेज मिल रहा है? प्लीज ऑब्जर्व। आप अगर चीजों को ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आप बिल्कुल सही, डेफिनेटली। तो पिक्चर ही ना बताया मैम, आपको बताने की जरूरत पड़ा क्या? मैंने आपको बताया कि व्हाट इज दिस। मेरा एक पोएम है, मैं आपको कभी जब बुक रिलीज होगा जान ही जाएंगे, डोंट फेवर चाइल्ड लेबर। ठीक है, टाइटल ही ऐसा है, टाइटल भी मैं राइमिंग के साथ किया हूं इसको। ठीक है, डोंट फेवर चाइल्ड, रो देंगे अगर आप पढ़ेंगे तो। अंडरस्टूड? सो सी, दिस पिक्चर शोज डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज विच द चिल्ड्रन आर डूइंग। तो आप पिक्चर से, ये मेरा मोटिव ये था दिखाने का कि आप इस कंपोजिशन से समझे कि नहीं ये चाइल्ड लेबर को दिखा रहा है। दिस पिक्चर इज पोर्ट्रेइंग चाइल्ड लेबर और नॉट। तो आप कैसे पकड़े पिक्चर को? आपको कोई बताया तो नहीं, आप सिर्फ देखे, ऑब्जर्व किए तो समझ में आ गया कि ये टॉपिक चाइल्ड लेबर ही है। करेक्ट? तो बच्चों के अंदर हम लोग ऐसे भी इंटरेस्ट जगा सकते हैं। There are various ways. I am just giving one or two illustrations. There are plenty. And we are doing, I know. We are, all are great teachers. बहुत अच्छे हैं, devoted teachers हैं. Next. अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं कि ये पुड़िया खा के दांत राजेश रोशन से निकलवा लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है। Just have a glance. Why dentist is important? एक डेंटिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है बताइए? बिकॉज इवन दाउ ही इज मिसिंग एन आईब्रो, उसका आईब्रो नहीं होगा ना, काम चल जाएगा। समझे बात को? द फर्स्ट थिंग यू नोटिस इज स्माइल। कोई टकला के यहां तेल लेने जाएंगे, बाल उगाने का तेल दे दो भैया। जब तक एक डेंटिस्ट का खुद का दांत अच्छा नहीं होगा, उसमें एक प्लीजेंट स्माइल होगा नहीं, आप जाएंगे उसके पास? वही चीज है। किसी गंजे के पास जाएंगे जो तेल दे रहा है, बेच रहा है बाल उगाने का, भैया तुम खुद का नहीं उगा पाए, दूसरे का क्या उगाएगा? एम आई राइट? मुझे याद है बच्चे लोग मुझे से पूछते हैं, सर चुटकुला सुनाई ना। कभी कभी स्टॉक्स खत्म हो जाता है तो खुद से बनाता हूं। एक लंगड़ा था, एक लंगड़ी थी, दोनों रेस लगा के मर गया। एक अंधा था, एक अंधी थी, दोनों सिनेमा देख के मर गया। व्हाट टू से? एक टकला था, एक टकली थी, दोनों झोंटा झोंटी करके मर गया। फॉर फन से कायम से ही, हंसाने के लिए, हंसने के लिए नहीं। अंडरस्टूड? इसमें तो किसी का नाम मैंने लिया? किसी का नाम लिया? नहीं। किसी बच्चे का नाम लिया? नहीं। लेकिन बच्चा को क्लास थोड़ा सा क्या हो गया? इंटरेस्टिंग हो गया। फिर आप कम बैक करो। दिस इज कॉल्ड आइस ब्रेक। रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, आई मीन से टीचर्स, इसको बोलते हैं आइस ब्रेक। जब क्लास आपको फील हो जाएगा कि थोड़ा मोनोटोनस हो रहा है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो आप उसमें। मूवीज में भी इंटरवल होता है कि नहीं? इंटरमिशन होता है कि नहीं? ताकि आप लेज, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स ला पाए और खा पाए। बात समझे? हाँ, थोड़ा हल्का भी हो पाए। यू आर राइट सर। ठीक है। दैट इज वेरी ह्यूमरस आंसर सर। सो आप देखो, इस पिक्चर से यही सिंबलाइज करता है। अगर इसका खुद का स्माइल अच्छा नहीं होगा, दूसरे को दे पाएगा? वही चीज है टीचर पे भी। वो खुद तैयार नहीं होगा या होगी, खुद प्रिपेयर्ड होगा या नहीं होगी, तो वो दूसरे को क्या प्रिपेयर करेंगे? एम आई राइट? नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी आर इन द क्लाइमेक्स ऑलमोस्ट। व्हाट पीपल सी सक्सेस। लोग क्या देखते हैं? सफलता।
है अंबानी इतना पैसा है, हार्दिक पांड्या है कुछ नहीं था, अभी देखो बहुत कुछ है, धोनी कुछ नहीं था, उसके पास बल्ला खरीदने का पैसा नहीं था, ठीक है, उधार लेके बैटिंग करता था, खेलता था, आज देखिए बल्ला का ब्रांड एम्बेसडर भी हो गया। तो हम लोग सिर्फ सक्सेस देख रहे हैं, व्हाट दे डोंट सी, क्या नहीं देखते हैं, हार्ड वर्क, ठीक है, परसिस्टेंस, लेट नाइट्स, यहां लेट नाइट्स मैंने क्या, सिनेमा नुमा देखे नाइट शो आ गए, लेट नाइट नो, रात भर जगह है, उसको सपना हासिल करने के लिए नींद नहीं आ रही है, दैट लेट नाइट। और यहां लेट नाइट कह रहा है, कैसे हो, लाल टी शर्ट अच्छा लग रहा था, ब्लू जींस कहां से ली थी, दिस लेट नाइट विल नॉट वर्क आउट। ओके, फिर तीसरा है रिजेक्शंस। क्या आपको पता है नेहा कक्कड़ एक सिंगर है, इंडियन आइडल में आज जज बैठी है बन के, और वही इंडियन आइडल में जब वो पार्टिसिपेट तो उसको रिजेक्शन कई बार हुआ, तो ये इंस्पिरेशन है कि नहीं, एग्जाम्पल ठीक दे रहे हैं ना, है? अरे मेरे ही फैमिली में बहुत, अरे तुम कुछ नहीं कर पाएगा, तुम मैट्रिक पास कर गया बहुत है, टुडे आई एम ट्रिपल मास्टर्स, डिस्पाइट ऑफ दैट आई एम डाउन टू अर्थ एंड आई विल बी, क्योंकि यही जिंदगी है, इसी में जाना है, क्या चीज का दिखावा। लेकिन हाँ, आज वही लोग ब्लेसिंग दे रहे हैं, हाँ आज इंटरव्यू लेने आ रहा है फैमिली, हाँ बहुत अच्छा है, वो तो शुरू से ही बहुत मेहनती था, बचपन से ही, तो कभी कभी मेरे को लग रहा है फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो बिकॉज झूठा तारीफ सुनने का आदि हम है नहीं, अगर मैंने गलती की है तो तुरंत एक्सेप्ट भी करना है, बीइंग ए टीचर हो जाता है हम लोग। टू अर् इज ह्यूमन, देखिए फिर एक प्रोवर्ब में हमने ऐड किया है, टू अर् इज ह्यूमन बट टू कंटिन्यू द अर् इज इनह्यूमन। मतलब समझे, मानव है, गलती करेंगे, लेकिन उस गलती को दोहराते रहेंगे तो ये अमानवीय व्यवहार है। एम आई राइट? इसमें ऐड ठीक किए है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन होना चाहिए एप्रिसिएशन के साथ। उसके बाद देखिए डिसिप्लिन है, सेक्रीफाइस है, फिर मैं आपको एक याद दिलाऊंगा चैप्टर, सर आप साथ जान रहे होंगे, एवलिन क्लीने का, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं संतोष यादव का, ये लोग क्या हुआ, सेक्रीफाइस किया तब सक्सेस मिला है, इतना आसान नहीं, माँ बाप के बिना जो रह नहीं पाता था 10 साल तक रहा, तब सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, तब उसे सक्सेस हासिल हुआ। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, ये तो बहुत है, अरे वो तो पी के रोड में पड़ा हुआ रहता था, नहीं भी है लेकिन आप बोल रहे हैं। वाई नाउ ए डेज आपका सैडनेस का कारण दूसरे का हैप्पीनेस है, एम आई राइट? ये है, एक रूमर फैला रहा है, लेकिन क्या उसके मेहनत को आपने सलामी दिया? नहीं, उसके डेडिकेशन को, सेक्रीफाइस को सलामी दिया। फिर डाउट्स है, फिर फेल्योर्स है, उसके बाद सबसे बड़ा चीज होता है जो बिजनेस में भी आता है, तो रिस्क। एक प्रोवर्ब उसमें भी है, नो रिस्क नो, एंड फॉर दैट यू हैव टू सफर पेन, मेरा लाइन, फॉर दैट यू हैव टू सफर पेन, देन यू विल गेन एंड यू विल गेट 10 out of 10। समझ में आया? थोड़ा सा राइमिंग के आदि। नेक्स्ट, नाउ सी, ऑल सक्सेसफुल पीपल हैव वन थिंग इन कॉमन। सबसे पहला क्या चीज है? डिसिप्लिन, है कि नहीं? आप देख सकते हैं, डिसिप्लिन टू ईट हेल्दी फूड, कोई कोई मजबूरी में कचौड़ी सब्जी मार दबा रहा है, बात समझे? डिसिप्लिन टू वर्क आउट रेगुलरली, आप लोग मेरे को मत देखो प्लीज, ठीक है? हाँ, डिसिप्लिन टू गेट अप अर्लियर, इसके लिए तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स द पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, बट फॉर दैट वी हैव टू रिवाइज। समझ में आया? देन इन रियल सेंस वी विल बी कॉल्ड वाइज, अंडरस्टूड? तो डिसिप्लिन टू नेवर गिव अप, मैंने कहा ना, छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, गिव अप वही चीज हुआ, बात समझे? गिव अप मीन्स त्याग देना, छोड़ देना, क्विट कर जाना। लास्ट पॉइंट, डिसिप्लिन टू बिलीव इन देमसेल्व्स, अगर विश्वास नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। नो, आई कैन डू दिस, वर्ड इम्पॉसिबल में भी देखिए लिखा हुआ, आई एम पॉसिबल, एम आई राइट? है कि नहीं जी? तो व्हाट इज इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ? नथिंग।
Everything can be achieved. But for that, we need to dedicate ourselves and devotion should be there. Now we are in the conclusion part of first slide. Next. Conclusion part. मेरा यही था. I hope you would have enjoyed. Okay. And for you all, thank you. Thank you so much. Now I hand over my mic to my elder brother, Sri Sukla sir. Do you need a washroom break for 5 minutes? Since it is cold season. Otherwise, I will start my program. Okay, 5 minutes break for everyone, okay? What is your topic? Introduction of a chapter and its nuances.